हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड इन दिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली वी विल कवर टू टॉपिक्स, दैट इज oogenesis and menstrual cycle. So let's start with oogenesis. Now first, what is oogenesis? Now how to define oogenesis, या फिर you can say that oogenesis क्या है? The process of formation of a female gamete is known as oogenesis. So oogenesis is the formation of a female gamete. Okay. So the process of formation of a female gamete is known as oogenesis. And if we talk about female gamete is egg. और ये oogenesis process कहाँ होता है? ये oogenesis process takes place inside the ovary. So as we have seen in spermatogenesis, that spermatogenesis occurs inside the testis. Testis contains seminiferous tubule, and basically the seminiferous tubule contain two types of cell, that is the spermatogonia and the Sertoli cell. So in that case, spermatogenesis which is taking place inside the testis and oogenesis is taking place inside the ovary. About the spermatogenesis we have seen or we have discussed in the previous videos about spermatogenesis. So in this video we are going to cover oogenesis and menstrual cycle. Now the basic difference, one more important thing that you have to remember about you have to understand about oogenesis is that oogenesis is initiated in the embryonic development. So oogenesis process is initiated in the embryonic development, it during the fetal life of a female child. So when female child is not born, also during the fetal life, during the embryonic development or during the fetal life of the female embryo, this oogenesis process starts. It is initiated during the fetal life only. But if we talk about spermatogenesis starts at puberty. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है प्यूबर्टी में, लेकिन दिस प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली. और वहां पर जैसे इन स्पर्मेटोजेनेसिस वी हैव सीन दैट स्पर्मेटोगोनिया था, दैट इज द जर्म सेल फ्रॉम विच द स्पर्म इज फॉर्म. यहाँ पर जर्म सेल क्या है? oogonia. एंड दिस oogonia जो है, जितना oogonia बनने का होता है वो बर्थ के पहले ही बन चुका होता है और बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनता है. तो दिस oogonia इज अ डिप्लॉइड सेल. oogonia क्या है? डिप्लॉइड सेल है. दिस oogonia में क्या होता है? oogonia जो है उसमें माइटोटिक, पहले क्या होता है? oogonia अंडरगोज माइटोटिक डिफरेंशिएशन. oogonia जो कि डिप्लॉइड है, इट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम नंबर. तो oogonia में माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा टू फॉर्म प्राइमरी oocytes. oogonia क्या बनाएगा? प्राइमरी oocytes बनाएगा. oogonia से क्या बना? प्राइमरी oocytes बना. नाउ द oogonia is also diploid, it is containing 46 chromosomes, and this primary oocyte is also diploid, it is containing 46 chromosome. Now this primary oocyte, अब क्या होगा? ये primary oocyte में further meiotic division शुरू होता है और इसका meiotic division complete नहीं हो पाता है और ये arrest हो जाता है किस फेज में? प्रोफेज 1. इट गेट अरेस्टेड. प्राइमरी oocyte में फर्दर जो है मियोसिस शुरू होता है, लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है मियोसिस, और वो प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte. अब इस प्राइमरी oocyte का फर्दर डेवलपमेंट, देन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस प्राइमरी oocyte विल टेक प्लेस एट प्यूबर्टी. अब प्यूबर्टी जब होगा तभी ये प्राइमरी oocyte जो है उसमें फर्दर मियोटिक डिवीजन जो है उसका कंप्लीट होगा और वो सेकेंडरी oocyte बनाएगा. अभी ये प्राइमरी oocyte स्टेज में अरेस्ट हो गया, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया. नाउ ईच प्राइमरी oocyte जो है, ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अराउंड कुछ लेयर्स ऑफ सेल जो है वो सराउंड होते हैं. सो ईच प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल. तो प्राइमरी oocyte प्लस द लेयर ऑफ सेल को नाम क्या दिया गया है? प्राइमरी फॉलिकल. तो प्राइमरी oocyte प्लस प्राइमरी oocyte, इसके अलॉन्ग कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स बनते हैं और प्राइमरी oocyte प्लस ये लेयर ऑफ सेल्स को नाम दिया गया क्या? प्राइमरी फॉलिकल. अब क्या होता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. मतलब प्यूबर्टी आते आते क्या होता है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या होता है, बहुत सारे ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं और इसीलिए एट प्यूबर्टी ओनली 70,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो ओवरी में रह जाता है. तो ये बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल्स है कहाँ? ओवरी के अंदर. तो प्यूबर्टी आते आते तक 70,000 to 80,000 अप्रॉक्स प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो ओवरी में बच जाता है. नाउ दिस प्राइमरी फॉलिकल
again it gets surrounded by a layer of cells. This primary follicle, again it gets surrounded by a layer of cell, and this primary follicle, after getting surrounded by a layer of cell, this primary follicle again gets converted into secondary follicle. अब क्या होता है, again this primary follicle is converted into a secondary follicle. Now the secondary follicle, then the secondary follicle soon transform into a tertiary follicle. फिर क्या होता है, ये जो this secondary follicle, again it gets converted into tertiary follicle. The secondary follicle again transform into the tertiary follicle. Now at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division. तो प्राइमरी oocyte जिसका डिवीजन जो है वो सस्पेंडेड था, जो कि प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में तक में आके अरेस्ट हो गया था, प्रोफेज 1 में ही वो अरेस्ट हो गया था मियोसिस में. तो ये प्राइमरी oocyte है बेसिकली कहाँ, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, जो कि ओवरी में है ना. तो ये जो प्राइमरी oocyte, इसका डिवीजन जो है वो अरेस्ट हो गया था, वो क्या होता है, मैच्योरेशन आने पर उसमें फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है. एंड आफ्टर द मियोटिक डिवीजन दिस प्राइमरी oocyte इज देन कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte. ये प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी. अब क्या होता है कि टर्शरी फॉलिकल में कुछ चेंजेस होता है. अब ये टर्शरी फॉलिकल जो है साइज में बड़ा होता है और वो बनाता है क्या, मैच्योर फॉलिकल, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्राफियन फॉलिकल. ओके, तो अब क्या हुआ कि प्यूबर्टी आते आते क्या होता है, प्राइमरी oocyte जिसका डिवीजन रुका हुआ था प्रोफेज 1 में ऑफ मियोसिस, उसमें क्या होता है, फर्दर मियोसिस कंप्लीट होता है और प्राइमरी oocyte जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी. अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte जो है अपने अराउंड एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसको बोलते हो जोना पेल्यूसिडा. ये सेकेंडरी oocyte जो है अपने अलोंग एक मेम्ब्रेन बनाता है विच इज नोन एज द मेम्ब्रेन. दिस सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन अराउंड इट्स सेल्फ विच इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा. Now the Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process of ovulation. तब क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है विच इज मैच्योर फॉलिकल, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte एंड दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द ओवरी. ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ओवरी में ही हो रहा है. तो हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ऑफ द फेज जो है वो ओव्यूलेटरी फेज होता है, जिसमें ओव्यूलेशन होता है, जिसमें एक एग जो है हर मंथ एक एग जो है वो ओवरी से रिलीज होता है और वो एग या ओवम जो है वेट करता है फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म. अगर उस एग या ओवम को स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होगा. अगर वो एग और एग को या ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होगा, अगेन इट विल कम आउट, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा और इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. सो दिस बेसिकली ओव्यूलेशन प्रोसेस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन वी विल कवर दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड दिस ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है इट इज रेगुलेटेड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ हार्मोन्स. ये जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है इसको बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं. तो जो ग्राफियन फॉलिकल, ये सेकेंडरी oocyte या ओवम जो है किसके अंदर है, ग्राफियन फॉलिकल. और ग्राफियन फॉलिकल कहाँ है, ओवरी में है. तो ओवरी कंटेन द ग्राफियन फॉलिकल एंड जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है द सेकेंडरी oocyte जो है ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन. Now in this diagram you can see the प्राइमरी फॉलिकल इज देयर. नाउ दिस प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर करता है और फॉर्म करता है क्या, टर्शरी फॉलिकल. एंड दिस टर्शरी फॉलिकल जो है फिर क्या फॉर्म करेगा, ग्राफियन फॉलिकल. एंड दिस ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल. एंड विद इन दिस ग्राफियन, ये क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte या ओवम जिसको कहते हैं. अब ये क्या होता है, विद द रिलीज ऑफ दिस, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर करता है एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन प्रोसेस विच वी विल सी दैट वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का वन ऑफ द स्टेज होता है ओव्यूलेटरी फेज. ओके, तो ये सब प्रोसेस कब होता है, जब एक फीमेल मैच्योर होती है तभी होता है. ओके, उसके प्यूबर्टी के टाइम होता है, उससे पहले नहीं होता है. तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर करता है विद द रिलीज ऑफ एग. ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर करेगा विद द रिलीज ऑफ एग. और ये जो पार्ट्स ऑफ द जो ग्राफियन फॉलिकल बच गया,
द रेमनेंट और यू कैन से द बचा हुआ डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, तो यहाँ पर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है विद द रिलीज ऑफ egg and the left out or the remnant of the Graafian follicle is known as corpus luteum. and ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये आपके एग्जामिनेशन में भी दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. दिस कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सीक्रेट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन. दिस प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन. ये प्रोजेस्टेरॉन जो है क्या करता है, प्रेगनेंसी की तैयारी करवाता है और यूटेरस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको क्या करता है, थिक करता है. कि अगर प्रेगनेंसी हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये जो एग यहाँ जो रिलीज हो रहा है वो अगर उसका अगर स्पर्म से एनकाउंटर हो जाता है तो तब तो फर्टिलाइजेशन होगा. तो फर्टिलाइजेशन की तैयारी में ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो जो यूटेरस का लाइनिंग है उसको क्या करना है, थिक करना है. लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट कर जाता है. तो दिस वी विल सी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. Then this you can see that the process of you can see the spermatogenesis and oogenesis को compare किया गया है. In this diagram you can see that spermatogenesis और oogenesis को compare किया गया है. तो let's see first spermatogenesis. ये spermatogenesis, before starting spermatogenesis आपको spermatogenesis जो कि हम लोग एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, this spermatogenesis process is taking place inside the testis. टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है बेसिकली 2 टाइप्स के सेल का बना होता है. एक स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल. दिस स्पर्मेटोगोनिया ये जो है डिप्लॉयड है 2n. इट इज कंटेनिंग डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. इसमें कितना 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया. और दिस स्पर्मेटोगोनिया इज द मेल जर्म सेल. और यही स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हो जाए जो कि टेस्टिस में है. दिस स्पर्मेटोगोनिया, उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया इज अ डिप्लॉयड सेल. ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है. यही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म बनाता है. तो दिस स्पर्मेटोगोनिया विच इज कंटेनिंग 2n क्रोमोसोम, डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड सेल है विच इज कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम. ये स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है. क्या होता है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन. और स्पर्मेटोगोनिया क्या बना रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो माइटोसिस से बना है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के. तो यहाँ पर भी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा, 46, मतलब इट विल कंटेन डिप्लॉयड क्रोमोसोम. देन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा टू फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बन रहा है वो मियोटिक डिवीजन से बन रहा है. उसमें मियोसिस हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हो रहा है, तब वो बना रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सो द क्रोमोसोम नंबर इन केस ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना होगा, क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ, दैट इज 23 क्रोमोसोम. देन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और वो क्या बनाता है, फोर स्पर्मेटिड्स बनाता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं. इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 होगा. नाउ द स्पर्मेटिड फिर क्या बनाएगा, स्पर्म. एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मायोजेनेसिस. अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको, स्पर्म क्या होगा, इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, यू नो गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड.
गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, कितना होगा 23। अब हम बात करें कि जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में वो क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में शुरू होता है, उसके पहले स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता है। लेकिन oogenesis में हमने देखा और आगे भी हम ये डायग्राम में देखेंगे कि oogenesis प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है फीटल लाइफ में ही, जब एक फीमेल चाइल्ड फीटल लाइफ में ही है, अपने मदर के वुम में ही है, तभी ये oogenesis प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। बट दिस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। नाउ लेट्स सी दिस प्रोसेस. We have seen spermatogenesis, now we will see oogenesis. Now, oogenesis, definition of oogenesis, the formation of the female gamete is known as oogenesis. The process of formation of female gamete is known as oogenesis. Now, important चीज जो यहाँ पर oogenesis का है, that is, the oogenesis starts during the fetal life. Takes place नहीं बोलेंगे, ये शुरू हो जाता है during embryonic development. फीटल लाइफ में, मतलब जब फीमेल जो बेबी है वो अपने मदर के वुम के अंदर ही रहती है, तभी ये प्रोसेस ऑफ oogenesis जो है वो शुरू हो जाता है. सो इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग, oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ. इसमें क्या होता है कि ओवरी के अंदर ये oogenesis कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर. एग कहाँ बन रहा है? ओवरी के अंदर. वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कहाँ बन रहा था? टेस्टिस के अंदर. तो यहाँ पर ओवरी के अंदर. दिस फीमेल जर्म सेल दैट इज oogonia, वहां पर हम लोग देखें कि जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू कौन करता है? जर्म सेल, दैट इज द मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया. यहां पर हियर द प्रोसेस ऑफ oogenesis को शुरू कौन करेगा? oogonia, विच इज द फीमेल जर्म सेल. फीमेल जर्म सेल क्या है? oogonia, विच इज कंटेनिंग 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है oogonia में? दैट इज 46 क्रोमोसोम. नाउ दिस oogonia अंडरगोज माइटोटिक डिफरेंशिएशन. oogonia में क्या होगा? माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, माइटोसिस होगा, और वो बनाएगा क्या? प्राइमरी oocyte. oogonia क्या बनाया? प्राइमरी oocyte. ना oogonia में भी क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, और प्राइमरी oocyte में भी वो भी डिप्लॉयड है, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46 होगा. अब क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू होगा. ये फीटल लाइफ में हो रहा है. प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो शुरू होगा, और वो अरेस्ट हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा एट द प्रोफेज 1. मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाएगा. कौन? प्राइमरी oocyte. उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस प्राइमरी oocyte विल टेक्स प्लेस आफ्टर प्यूबर्टी. उसके बाद क्या होगा? मैच्योरेशन आएगा. जब फीमेल में रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन आता है तब क्या होगा? प्राइमरी oocyte जो है फिर सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा. तो अभी ये प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो गया, वो स्टॉप हो गया एट द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. ओके, and this is getting arrested in the prophase 1 of meiosis. जब इसमें क्या होता है फिर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? इसमें मियोसिस कंप्लीट होता है, और ये प्राइमरी oocyte क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte. क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte. नाउ द क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन प्राइमरी oocyte इज 46, एंड द क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी oocyte क्या होगा? उसका आधा होगा. कितना होगा? 23 होगा. सो सेकेंडरी oocyte क्या होता है? वो हैप्लॉइड होता है. फिर सेकेंडरी oocyte से फिर क्या बनता है? ओवम बनता है. ओके, तो दिस प्रोसेस, इस होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज oogenesis, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस oogenesis प्रोसेस जो है वो शुरू कब होता है? इट गेट इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली. मीन्स दिस प्रोसेस ऑफ oogenesis वो शुरू हो जाता है इन द फीटल लाइफ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड. Now we will move on to the menstrual cycle. Now what is this menstrual cycle? Menstrual cycle क्या है? Menstrual cycle, the reproductive cycle in the female primate, जैसे monkey, apes और human beings में जो reproductive cycle होता है उसको बोलते हैं menstrual cycle. और the first menstruation begins at puberty and is called menarche. जो पहला menstruation होता है वो प्यूबर्टी में शुरू होता है, और उसको क्या बोलते हो? मेनार्क बोलते हो. ओके, और ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन जो है वो एवरेज 28 दिन पर 28 डेज पर रिपीट होता है, एंड द साइकिल ऑफ इवन स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, तो एवरेज 28 दिन में का ये साइकिल होता है, फिर ये रिपीट होते जाता है.
अब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, अगर हम लोग स्टेजेस देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेसिकली 4 स्टेजेस होता है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, दूसरा फॉलिकुलर फेज होता है, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज होता है, और चौथा जो लास्ट ल्यूडियल फेज होता है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होता है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टोटल होता है वो 28 डेज का साइकिल होता है, एंड in the mid during the mid of this menstrual cycle, that is the 14th day of menstrual cycle में क्या होता है ovulation होता है। 14th day of the menstrual cycle में क्या होता है ovulation होता है, and one ovum is released from ovary at the 14th day of menstrual cycle। एक ओवम जो है वो रिलीज होता है ओवरी से, एक ओवम जो है वो रिलीज होता है कौन से दिन पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पर एक एग जो है ओवरी से रिलीज होता है, और ये एग जाके एंटर करेगा फैलोपियन ट्यूब में। वहां पर वो वेट करेगा फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो दूसरा फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फिर शुरू होगा। तो ये होता है, हम देखेंगे डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो चलिए चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज पर। जो मेंस्ट्रुअल द फर्स्ट फेज, और यू कैन से फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। और ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है लगभग 3 से 5 दिन का होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटरस। सो इन दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटरस जो है वो ब्रेक करता है। जो यूटरस का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है जिसको आप एंडोमेट्रियम बोलते हो वो ब्रेक करता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। तो इफ द ओवम जो कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, और हर महीने एक एग जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी। अगर उस एग को स्पर्म मिल जाता है देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड इफ दैट एग do not encounter is not encountering the sperm, then what happens, again menstrual cycle होगा। अगर वो egg को sperm मिलता है then fertilization will take place, and if fertilization does not take place, if fertilization is not taking place, then फिर again menstrual cycle जो है next cycle जो है वो फिर शुरू हो जाएगा। तो menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। If the released ovum is not fertilized, जो ovum release हो रहा है that is not fertilized, then only menstruation cycle will take place। उसके बाद menstrual phase जो है that is followed by follicular phase। menstrual phase जो है के बाद क्या होता है, follicular phase होता है, in which the primary follicle जो है वो बनाता है mature follicle जिसको बोलते हो Graafian follicle। और क्या होता है ये follicular phase में, ये तो यहाँ पर क्या है कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखेंगे कि ओवरी में चेंजेस होता है और यूटरस में चेंजेस होता है। तो यहाँ पर जो ओवरी में चेंजेस हो रहा है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आया आपका फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज में जो ओवरी में चेंजेस हो रहा है वो क्या है कि प्राइमरी फॉलिकल जो है वो क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल। एंड वी नो दैट ये फॉलिकल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। एंड द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस रीजनरेट्स, और यूटरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है, जो लेयर होता है यूटरस का, वो वापस से रीजनरेट होता है। तो दीज आर द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ओवरी एंड यूटरस। तो ओवरी में भी चेंजेस हो रहा है और यूटरस में भी चेंजेस हो रहा है। सो वी हैव सीन दैट मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय follicular phase। okay, now the next phase of menstrual cycle is follicular phase के बाद आएगा अब ovulatory phase। आफ्टर दिस फॉलिकुलर फेज क्या आएगा, ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो चेंजेस इन द ओवरी, द चेंजेस इन द ओवरी एंड यूटरस आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। ये जो चेंजेस होते हैं ओवरी में और यूटरस में उनको कौन रेगुलेट करता है, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। द सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनका सिक्रेशन जो है फॉलिकुलर फेज में बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि दोनों बोथ LH एंड FSH जो है अपने पीक पर पहुंचता है ड्यूरिंग द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट ओव्यूलेशन is taking place. This menstrual cycle is of 28 days and this ovulation process takes place at the 14th day of menstrual cycle। तो जो 14वें दिन होते हैं ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और इस फेज में ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दो हार्मोन से जिसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, दैट इज द LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH दैट इज द स्टिमुलेटिंग
ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये LH क्या करता है, 14th डे में ये LH का जो है वो सिक्रेशन बढ़ गया, और ये LH क्या करता है, इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल को विद द रिलीज ऑफ ओवम। ये LH जो है ओव्यूलेशन करवाता है, मतलब LH जो है वो इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल को टू रिलीज ओवम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। सो LH का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, LH जो है वो रप्चर कराता है ग्राफियन फॉलिकल का विद द रिलीज ऑफ ओवम, and with the release of ovum from ovary, and this process known as ovulation. Now ovulatory phase, ये हो गया ovulatory phase. Now the ovulatory phase is then followed by luteal phase. ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है, और ल्यूटियल फेज से नाम से ही पता चल रहा है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ल्यूटियल फेज ऐसा फेज जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ल्यूटियल फेज नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा फेज जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जो ओव्यूलेशन में क्या हुआ कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है टू रिलीज एग, तो जो ग्राफियन फॉलिकल को जो लेफ्ट आउट पार्ट है, जो रेमिनेंट है, जो लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल का है, वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। जो लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल और द रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज टर्म्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, और वो क्या बनाता है, यू कैन से कि जो रेमिनेंट ऑफ द लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल लेटर फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, ल्यूटियल फेज में। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन बनाना, एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज ये प्रेगनेंसी की तैयारी करवाता है। कैसे, जो यूटरस का लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसको और थिक बनाता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो बेबी का फर्टिलाइजेशन हो तो एम्ब्रियो का क्या हो, इम्प्लांटेशन हो। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी एग जो रिलीज हुआ था ओव्यूलेशन प्रोसेस से, वो जाके वेट करेगा, और उसको अगर स्पर्म मिलता है तब फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी की तैयारी हो जाती है, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर वो एग विच इज रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, अगर उसको स्पर्म मिलता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की तैयारी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, मतलब वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा आके यूटरस में। तो ये यूटरस का लाइनिंग को थिक कराता है, मतलब प्रेगनेंसी की तैयारी जो है वो कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि रिलीज कौन किया, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी से पहले क्या होता है, प्रेगनेंसी की तैयारी होती है। हियर इट इज गिवन, सी कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रेट क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ल्यूटियल फेज में बनता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या है, यूटरस का जो इनर लाइनिंग है उसको थिक करता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो एम्ब्रियो यहाँ पर आके यूटरस में इम्प्लांट हो जाए। सच एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। और एंडोमेट्रियम का थिक होना, एंडोमेट्रियम जो कि यूटरस का इनर लाइनिंग है, उसका थिक होना क्यों जरूरी है, क्यों एसेंशियल है, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, अगर प्रेगनेंसी होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इवेंट है वो स्टॉप हो जाता है। और इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, देन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, एंड दिस कॉजेज disintegration of endometrium leading to menstruation. So if fertilization is not taking place, then menstrual cycle begins. Menstruation ceases at the age of 50 year and is called menopause. तो menstruation जो है वो cease हो जाता है at the age of 50 years and it is called menopause. Now this diagram, you can see this diagram is very important, and in this you can see that this is the diagram of the various events which is taking place during menstrual cycle. तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि बहुत सारे इवेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस ओवरी में होता है
और क्या क्या चेंजेस यूटरस में होता है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। क्या क्या चेंजेस ओवरी में हो रहा है और क्या क्या चेंजेस यूटरस में होता है। तो पहला क्या है, पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। ये 3 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद क्या होगा, फॉलिकुलर फेज होगा। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि जो ओवरी है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ओवरी का जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो बनाता है क्या, मैच्योर फॉलिकल, जिसको आप ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल है, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है विद द रिलीज ऑफ एग। 14 डे पर हो रहा है ओव्यूलेशन। और आप देख सकते हो कि 14th डे पर LH और FSH हार्मोन जो है वो पीक पर रहता है इन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पार्ट ऑफ लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या बनाता है, मैच्योर फॉलिकल जो रप्चर किया तो वो एग रिलीज किया। और जो बचा कुचा पार्ट है ये ग्राफियन फॉलिकल को, वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो कि ल्यूटियल फेज में होता है। जो कि किस फेज में होता है, ल्यूटियल फेज में। तो ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और दिस कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, विच इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। मतलब जो यूट्रस का लाइनिंग है उसको थिक करता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइज्ड ओवम उसमें आके इम्प्लांट हो जाए। और नेक्स्ट फेज के नेक्स्ट साइकिल बिगन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है और फिर से नेक्स्ट साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट related to this video, that please do give your comments in the comment box. So today I am ending this video. Next I will come with a new video with the chapter human reproduction only. I will cover other topics of human reproduction. तो आज के लिए इतना ही. Thank you.